Hello everyone, this is Farhan. Let's start. June 2021, variance 23. Seems like this question belongs to group 17, which is also known as halogens. Between the molecules of group 17 elements, van der Waals forces exist. State the trend in the relative strength of the van der Waals forces down the group. Down the group, van der Waals forces increases. Van der Waals forces increases because number of electrons increases. Okay. State the physical state of each of the halogen under room condition. Chlorine is a gas at RTP, bromine is a liquid at RTP, and iodine is a solid at room temperature and pressure. Okay. This is liquid. And this is solid. Solution of aqueous bromide ions is added to a separate sample of chlorine and iodine. Describe what is observed in each reaction. Explain your answer in terms of relative reactivity of these elements as oxidizing agents. So हम सब जानते हैं कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्रोमाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो हम इससे रिलेटेड इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2Br नेगेटिव plus Cl2 arrow 2Cl negative plus Br2. Okay. On the other hand, हम सब जानते हैं कि आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए वो ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन नहीं होगा। सो हम यहाँ ऑब्जर्वेशन की अगर बात करेंगे तो हम जानते हैं कि क्लोरीन का येलो ग्रीन कलर होता है, वो डिसअपियर होगा। Yellow green color disappears. और हम जानते हैं कि हमारे पास ब्रोमीन भी फॉर्म हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि रेड ब्राउन कलर, जिसको हम ऑरेंज भी कहते हैं, so red brown या orange color appear. All right. Now in the case of iodine, since it is less reactive than bromine, इसलिए no reaction. All right. Now what about the explanation? The explanation the same है कि chlorine is a stronger oxidizing agent. Chlorine is stronger oxidizing agent than bromine. और हम ये भी कह सकते हैं कि iodine is weaker oxidizing agent than bromine. इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है। Bleach is made by reacting chlorine with cold NaOH. Write an equation for the reaction of chlorine with cold NaOH. तो आपके पास cold NaOH है, ये रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट होगा सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोरेट 1, जिसका फॉर्मूला है NaClO, एंड वाटर में। और ये जो सोडियम क्लोरेट 1 है, दिस विल एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ओके। नेक्स्ट इज when ClO negative is added to water, it behaves as a Bronsted Lowry base, meaning इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि तमाम Bronsted Lowry base
प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। तो बताइए प्रोटॉन एक्सेप्टर। Now the next is ionic equation for the reaction between ClO negative and H2O। तो हम सब जानते हैं कि ये ClO नेगेटिव है, हम सब जानते हैं कि हम इसको वाटर में प्लेस कर रहे हैं। ClO नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बिकॉज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है और कन्वर्ट हो जाएगा HClO में विच इज क्लोरिक 1 एसिड और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज हो जाएंगे। ओके, तो प्रोटॉन अपना सॉरी वाटर अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा ClO नेगेटिव को एंड एज अ रिजल्ट इट विल टर्न टू HClO नेगेटिव और वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन रह जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। Next is the concentration of NaClO in bleach S is x gram per dm cube, यानी concentration जो है वो हमारे पास in gram per dm cube है, which I think we need to find out because इसने x का है। ठीक है, sodium chlorate 1 reacts with H2O2 as shown। 5 cm cube sample of S, यानी इस bleach का वॉल्यूम है आपके पास 5। Bleach has a volume of 5 cm cube, reacts with H2O2. The volume of oxygen produced is 24.0 cm cube under room condition. Assume that only NaClO reacts with H2O2. Calculate X, show your working. How many marks we have? 3 marks. Okay, तो हमें actually concentration calculate करनी है in gram per dm cube. So first of all, we need to find out the moles of oxygen gas produced. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालने के लिए मेरे पास है 24.0 cm क्यूब, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 24,000 cm क्यूब से, तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे 24 divided by 24,000, so it's going to be 1 into 10 to the power minus 3। okay, according to the equation NaClO और ऑक्सीजन में 1:1 का रेशो है। अगर आपने 1 into 10 to the power minus 3 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो मोल्स ऑफ NaClO कितने होंगे? तो मोल्स ऑफ NaClO in 5.00 cm cube कितने होंगे? 1 into 10 to the power minus 3 moles। Now we need to convert them into concentration in mole per dm cube। So obviously मैं कहूंगा कि 5 cm cube में आपके पास मोल्स थे 1 into 10 to the power minus 3। okay, to convert them into concentration we need to compare it with 1000। so concentration is going to be into 1000 divided by 5, so it's going to be 0.2 mole per dm cube। now we need to convert this concentration into gram per dm cube and for that मैं mr of NaClO से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हम mr of NaClO कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम होता है 23, क्लोरीन होता है 35.5 और ऑक्सीजन होता है 16। तो यहाँ से आपके पास mr आ जाएगा 23 plus 35.5 plus 16, so it's going to be 74.5। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोल पर डीएम क्यूब इनटू एमआर। मोल पर डीएम क्यूब मेरे पास है 0.2, एमआर है मेरे पास 74.5, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.2 से, सो इट्स गोइंग टू बी 14.9 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे 14.9 ग्राम पर डीएम क्यूब। Okay, now the next is sodium chlorate 1 oxidizes dilute hydrochloric acid to form 3 products। okay, the products which contain chlorine have chlorine species with oxidation number -1 or 0।
No other species changes its oxidation number during the reaction. Use this information to complete the ionic equation. अच्छा जी, पहली तो बात ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है। अगर आपके पास 0 है तो इसका मतलब वो कह रहा है प्रोडक्ट्स which contain chlorine have chlorine species with oxidation number -1 and 0। तो अगर -1 है तो इसका मतलब ये Cl- होगा, और अगर 0 है तो ऑब्वियसली ये Cl2 होगा क्योंकि न्यूट्रल होगा। ओके, so let's make the equation. First of all, convert them into Cl2, then Cl negative. Okay, H and O दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O. So what's left? How many chlorines here? 2 chlorine. How many chlorines here? 3। तो जाहिर सी बात है मैं यहां पर 2 लगा देता हूं क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन 2 है। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 लगाया। नाउ बैलेंस करो इक्वेशन को, ये 2 क्लोरीन हो गए, ये 1 क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरीन, यहाँ पर भी हमारे पास 3 क्लोरीन। ऑल राइट, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। ओके, that's the end of question number 1, I believe. Let's move on to the next question. Methanol is soluble in water because of hydrogen bonding. Okay, all alcohols exhibit hydrogen bonding and so methanol is। so अगर वो soluble है तो obviously उसकी reason है hydrogen bonding। due to hydrogen bonding it is soluble in water। all right, oh my goodness, आगे लिखा हुआ है draw a fully labeled diagram to show how hydrogen bond forms between water molecule and a methanol molecule। तो मैंने क्लास में करवाया था आपको, क्राइटेरिया करवाया है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं जो मैंने क्लास में करवाया आपको। ये आपके पास अल्कोहल है, ऑलराइट, तो सबसे, और ये आपके पास है वाटर। तो सबसे पहला काम कि आप लोन पेयर शो करेंगे ऑक्सीजन का, यहां भी शो करें, यहां भी शो करें। दूसरा काम आपने डायपोल्स शो करने स्लाइड नेगेटिव, और ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या होंगे? स्लाइड पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये क्या होगा? स्लाइड नेगेटिव। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन आइटम इज हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी है, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और वो ये है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इथेनॉल को ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, लेकिन पहले चार्जेस डायपोल्स, क्योंकि मैंने क्लास में कहा था कि डायपोल्स मेंशन करने का 1 मार्क होता है, लोन पेयर को मेंशन करने का 1 मार्क होता है, इजंट इट। और अब हम शो करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इन दोनों में से कोई एक बना दीजिए, दोनों बना के देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लेबल करना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। उन्होंने मेंशन नहीं किया कि क्या क्या चीजें चाहिए आपको, लेकिन 3 मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली 1 मार्क जो है वो डायपोल्स को मेंशन करने का होगा, 1 मार्क लोन पेयर को शो करने का होगा, और 1 मार्क इस हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करने का होगा। ओके, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में से कोई भी चाहे लिख सकते हैं आप। Next is methanol has a melting point of -97.6 degrees Celsius and boiling point is this. Okay, a sample of pure liquid of methanol is added to a flask and then sealed. The sealed flask is left for several days at constant temperature. The vapor pressure is then measured as 17 kilopascal. Describe what is meant by the term vapor pressure of methanol. जो गैशियस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड में एट इक्विलिब्रियम, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर
exerted by the gaseous molecules in equilibrium with liquid is called vapor pressure. हम इसको थोड़ा सा और बेहतर करके भी लिख सकते हैं. Just hold. 2 marks का part है तो something. Hold. I got it. The pressure exerted by the gaseous molecules on the wall of the container in equilibrium with liquid is called vapor pressure. Okay. Explain why some of the liquid becomes a vapor. अच्छा, आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इवेपोरेशन. आप जानते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो लिक्विड के अंदर होता है और रूम टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेशन हो रहा होता है, क्योंकि जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ देते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं. ओके, तो हमने एग्जैक्टली ओ लेवल केमिस्ट्री का जो इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट है वो लिख कर देना है. तो हम बताएंगे मॉलिक्यूल्स present on the surface of liquid have enough kinetic energy so they will escape from the liquid surface as they have enough energy to overcome attractive forces. ये एग्जैक्टली मैंने ओ लेवल केमिस्ट्री इवेपोरेशन लिख के दिया है आपको. ओके, suggest and explain why the vapor pressure of water at room temperature is lower than vapor pressure of methanol at room temperature. Refer to the correct intermolecular forces in your answer. आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, हमने पढ़ाया आपको. जाहिर सी बात है वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है और लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर तो कम होगा उसका. ठीक है, प्रेशर ऑफ द वेपर इज वेपर प्रेशर ना. तो अगर वाटर है और लिक्विड स्टेट के अंदर है एट रूम टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर तो इतना नहीं होगा. ओके, लेकिन आप सब जानते हैं कि मेथनॉल जो है वो हाईली वोलेटाइल होता है, राइट. तो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, लिहाजा उसमें वीक वैन वाल फोर्सेस होंगी, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा.
सो हम यहाँ लिख सकते हैं in liquid water exhibits hydrogen bonding. Okay, it is a stronger bond so more energy is needed to overcome this bond. To break this bond. All right. और क्या हो सकता है इसमें? This means only अच्छा देखो, मैं कुछ इस तरह से बता रहा हूँ कि वाटर क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर, विच इज व्हाई इट एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में, इस लिक्विड वाटर की सिचुएशन में, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, बहुत ही कम मॉलिक्यूल वाटर के ऐसे होंगे जो इवेपोरेट होंगे, राइट, जो गैस में कन्वर्ट होंगे। सो ओनली फ्यूर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर will turn to gas, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम होगा। Hence, it has lower vapor pressure. Okay. Next part is part C. Methanol is made by reacting carbon monoxide with hydrogen. Carbon monoxide and hydrogen reacts at this pressure and 200 degrees Celsius. Eventually, the reaction mixture reaches dynamic equilibrium. आप सब जानते हैं कि जब dynamic equilibrium achieve करता है तो rate of forward is always equals to rate of backward. The rate of forward is always equals to rate of backward at dynamic equilibrium. The table shows the amount of each species present in the mixture. So ये equilibrium moles आ गए आपके पास। वो कह रहे हैं what is mean by dynamic equilibrium, तो मैंने पहले भी बताया है, rate of forward equals to rate of backward। और जाहिर सी बात है जब ये अचीव करेगा इक्विलिब्रियम तो कंसंट्रेशन नीड्स टू बी कांस्टेंट। सो 2 मार्क्स का पार्ट है, ये दोनों पॉइंट्स हमें लिखकर देने होंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction in a closed vessel hence concentration of reactants and products needs to be constant. All right. Okay, calculate the partial pressure of methanol vapor at equilibrium under these conditions. Oh, partial pressure. Partial pressure किसे कहते हैं? The individual pressure of a gas in a mixture is called partial pressure. The individual pressure
exerted by the gas in the mixture. Okay. Partial pressure, तो मुझे partial pressure of methanol कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, मैं याद करा देता हूं आपको पहले। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था moles of gas over total moles into P। अब नोट करो, ये जो प्रेशर है ये गिवन है, ये जो टोटल मोल्स हैं इन तीनों को ऐड करके मुझे पता चल जाएगा, और मोल्स ऑफ गैस ये गिवन है, आई कैन फाइंड आउट, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टोटल मोल्स फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मेरे पास है 0.030 प्लस 0.060 प्लस 0.97, तो यहां से मेरे पास टोटल मोल्स आ जाएंगे गाइस 1.06। ठीक है, मुझे तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है मेथनॉल का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल कैलकुलेट करने के लिए मुझे मोल्स ऑफ मेथनॉल चाहिए, विच इज 0.97 divided by total moles, which is 1.06 into pressure question के अंदर given है, which is 1.0 into 10 to the power 7, ये हो जाएगा 1.0 into 10 to the power 7। So let's find out कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। 0.97 divided by 1.06 into 1.0 exponent 7, so मेरे पास बेटा आंसर आ रहा है 9150943.396। सो मैं अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं आपके लिए, तो ये हो जाएगा 9.2 into 10 to the power 6। okay, write an expression for the equilibrium constant Kp for this reaction, state the units in your answer। तो Kp का एक्सप्रेशन लिखना है, Kp का एक्सप्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, मेथनॉल, रिएक्टेंट आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो हम लिख लेते हैं इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं इसलिए पावर स्क्वायर। okay, I hope it makes sense to you। That's the end of second question। Let's move on to the next one। oops, unit left guys। देखो इसकी यूनिट क्या होगी भाई, पैस्कल, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, पैस्कल, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, पैस्कल, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा, पैस्कल स्क्वायर। अब ये यूनिट इसको कैंसिल करेगा तो आपके पास यूनिट हो जाएगा 1 पैस्कल स्क्वायर, तो यूनिट फाइनली होगी पैस्कल इनवर्स 2। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, बी केयरफुल। क्वेश्चन जब कर लें कंप्लीट तो मेक श्योर के हर चीज चेक करें आप, ठीक है, उसके बाद मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। Let's start question number 3. Separate sample of R, S, T, and U are added to cold water. The identity of each sample is unknown. However, each sample is known to be pure and can only be one of barium hydroxide, sodium chloride, P4O10, or SiCl4. Use the observation in the table to identify each sample as one of barium hydroxide, this, and SiCl4. Write your answer in the table. आपके पास solid है, so P4O10 भी सॉलिड होता है और सोडियम क्लोराइड भी सॉलिड होता है, सही है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड होता है। ओके, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड NaCl P4O10 ये सॉलिड, और ये क्या होगा, लिक्विड। ओके, और ये मैंने करवाया आपको कि ये SiCl4 लिक्विड होता है, सो इसका मतलब T जो है वो SiCl4 है। ओके, और आप जानते हैं ना, हमने आपको करवाया ये काम, SiCl4
Cl4 को अगर मैं कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाऊंगा, so because of the presence of vacant d orbital, it can easily hydrolyze and converting into SiO2 and misty fumes of HCl. तो वो आपसे यही तो कह रहे हैं कि मिस्टी फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस HCl के होंगे, व्हाइट सॉलिड बनेगा, SiO2 का होगा। विग्रस रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास। ओके, तो टी तो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अच्छा आपको एक और चीज याद हो, अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये डिसॉल्व होकर कन्वर्ट होगा एक्वस सोडियम आयंस में और एक्वस क्लोराइड आयंस में, और आप जानते हैं कि इसका सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल, राइट। पीएच क्या होती है इसकी, 7, यही बताया ना। तो आप नोट करें, सोल्यूशन इज न्यूट्रल लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, व्हाइट सॉलिड डिसअपियर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो ऐसे ही आपका सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि अगर मैं P4O10 को वाटर में प्लेस कर दूं तो जाहिर सी बात है ये खुद एक एसिडिक ऑक्साइड है, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो एसिडिक सोल्यूशन देगा फॉस्फोरिक एसिड का, राइट। तो एसिडिक सोल्यूशन कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ कि एसिडिक सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन होगा क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा आपका P4O10, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी योर बेरियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ओके। Identify the formula of white solid made when sample T reacts with water. सैंपल T क्या है, SiCl4, और सॉलिड मेट जो बनता है वो SiO2 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशंस लिखी थी, उसमें बताया मैंने आपको। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं नेम द सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन सैंपल U रिएक्ट्स विद वाटर। तो जब आपने U को रिएक्शन करवाया वाटर के साथ तो फॉस्फोरिक एसिड बना, तो आप नाम लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड का, क्योंकि वो आपसे नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, तो हम लिखेंगे phosphoric acid. Now the next is magnesium oxide and aluminum oxide have properties typical to ceramic materials. Name one physical property of typical ceramic material. They have high melting point and boiling point. बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जाइंट आयनिक जितने होते हैं उन सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, have high melting point and boiling point. All right, and obviously ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करते, राइट, इन सॉलिड स्टेट। Next, give the formula of another period 3 oxide which behaves as a ceramic material, silicon dioxide. Okay, let's move on to the next part. Oh, that's related to calculation. Okay. Tungsten oxide is used to give color to ceramic materials. A sample of tungsten oxide contains 79.2% tungsten by mass. Calculate the empirical formula of this. Show you working. तो हम सबसे पहला परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज 100% था हमारे पास, उसमें से 79.29% W था, टंगस्टन था। वॉल्फ्रम भी कहते हैं बाय द वे इसको, टंगस्टन जो होता है वो वॉल्फ्रम भी होता है। ठीक है, W वॉल्फ्रम का सिंबल होता है। ऑलराइट, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 100 माइनस 79.29 इज गोइंग टू बी 20.71। ठीक है, ये परसेंटेज बाय मास हो गया मेरे पास।
इन द सेकंड स्टेप मेरे पास W है जिसका मास है 79.29 और ऑक्सीजन है जिसका मास है 20.71। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 16 से क्योंकि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। और W जो है वो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो मास है वो बेसिकली 183.8 होगा अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। तो हम डिवाइड करेंगे इसको 16 से सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 1.29 और आगे है 4 और 79.29 को डिवाइड करेंगे हम 183.8 से, so it's going to be 0.431। तो 0.431 is the least value, इसको डिवाइड कर दीजिए on both the side, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.294 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये हो जाएगा 2.99। 2.99 को मैं क्या ले सकता हूँ 3, तो W कितना हो गया 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, इसका मतलब X की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 और मेरे पास Y की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि उन्होंने X और Y से रिप्रेजेंट किया था, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा WO3। ओके, दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। seems like an easy question, guys. Question number 4, oh my goodness, typical organic question. 1,3-dichloropropane 2-ol can be made by reacting M. Give the systematic name of M. चलें, सबसे पहले तो कार्बन एटम को नंबर असाइन करते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1,3-डाइक्लोरो। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, और सेकंड कार्बन एटम के ऊपर कीटोन लगा हुआ है, इसलिए 2 ओन। तो सिस्टमैटिक नेम मांग रहा है तो मैं इस तरह से दूंगा 1,3-डाइक्लोरो propane 2 on. I hope you get the point. Okay. Name the functional group present in M that changes during this reaction. भाई ये क्लोरीन एज इट इज, ये क्लोरीन एज इट इज, जाहिर सी बात है ये कीटोन कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी अल्कोहल में, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा कीटोन। सही है। State a suitable reagent for this reaction. भाई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो आई कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड। हो सकता है किसी बच्चे ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो वो भी ठीक हो जाएगा, गलत नहीं करेंगे एग्जामिनर। ओके, नेक्स्ट इज separate samples of 1,3-dichloropropane 2-ol and 3-chloropropane 1,2-diol are heated with excess acidified potassium dichromate 6 until there is no further reaction. That means oxidation हो रही है। ओके, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं, एक्सेस भी है पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। In the reaction a different organic product Q and R is made. तो Q जो है वो आपके पास होगा, ये क्लोरीन है, ये आपका कीटोन हो गया, ये Q हो गया। सही है। एंड ऑब्वियसली R मेरे लिहाज से होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस अमाउंट है तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा बिकॉज इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, ये कीटोन बना। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं एक्सेस अमाउंट के अंदर है, तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिखेंगे COOH। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। नहीं, अभी भी ठीक नहीं हुआ। नो 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 नो, ये होगा COOH। दिस इंटायर थिंग विल टर्न टू COOH। बाकी सब कुछ एज इट इज रखा है मैंने। This entire thing will turn to ketone. Okay, so let's see what we have in this. Q and R are tested separately with 2,4-dinitrophenyl hydrazine solution, that is 2,4-DNPH, sodium carbonate solution. Complete the table to give any relevant observation. If no reaction occurs, no visible change. 2,4-DNPH Q के साथ बिल्कुल आएगा,
2,4-DNPH के येलोइश ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स। R के साथ भी येलोइश ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे क्योंकि उसके पास भी कीटोन है। सोडियम कार्बोनेट का Q के साथ नो विजिबल चेंज क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है इस कंपाउंड के अंदर, राइट। लेकिन इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये आपको ब्रिस्क एफिरवेसेंस देगा। ओके, oh my goodness, that C part citric acid can be made from M in 4-step reaction. हम्म 1 2 3 4 स्टेप रिएक्शन है ना। चलें तो वन बाय वन सब चीजों को पूछ रहे हैं हमसे, तो हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। सबसे पहला काम, ये कीटोन है और इस कीटोन में आप नोट करें एक ही कार्बन के साथ साइनाइड और OH अटैच हो रहे हैं, इसका मतलब साइनोहाइड्रिन बन रहा है। तो इसका मतलब कीटोन में हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। और आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमेशा HCN के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड व्हिच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। समझ में आया कि मैंने कैसे जज किया? मैंने जज जैसे किया कि ये CN और ये OH एक ही कार्बन एटम से अटैच है, इसका मतलब साइनोहाइड्रिन है ये। ओके, सो रिएजेंट मेरे पास क्या होंगे, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN, ये आपका कैटलिस्ट है। ओके, और साथ में हम इसको हीट भी करेंगे। और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में आइए। सेकेंड स्टेप में आप नोट करें ये पूरा COOH और सॉरी ये पूरा CN कन्वर्ट हो गया COOH में। इसका मतलब जो पार्ट टू है आपका, उसमें एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है और एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ रिएजेंट एंड कंडीशन इज रिफ्लक्स, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे, ओ उन्होंने खुद ही लिख दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस। और मैंने क्लास में बताया आपको ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, नो इशू। उसके बाद थर्ड में क्या हो रहा है, ये OH एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये COOH एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस क्लोरीन की जगह साइनाइड अटैच हुआ, इस क्लोरीन की जगह भी साइनाइड अटैच हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन। और SN रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, सोडियम साइनाइड की इन इथेनॉल। और कंडीशन क्या होती है, रिफ्लक्स। तो बेसिकली आप इसको क्या नाम दोगे, स्टेप अप रिएक्शन का। ओके, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन, इन दोनों की जगह पे क्या आ गया, साइनाइड, तो कार्बन इंक्रीज हो रहा है, स्टेप अप रिएक्शन भी कह सकते हो आप इसको। सो मेरे पास रिएजेंट होगा बेटा सोडियम साइनाइड इन इथेनॉल, और ये जो इथेनॉल है ये ऑब्वियसली सॉल्वेंट होगा इसका, कंडीशन रिफ्लक्स होगी। और ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मुझे कैसे पता चला अल्काइल हैलाइड है, बिकॉज हैलोजन इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, स्टेप 4, ये OH और ये COOH दोनों सेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन नोट करें ये CN कन्वर्ट हो गया COOH में, यानी एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि जनाब ये CN COOH में कन्वर्ट हो रहा है,
सिमिलरली ये वाला जो CN है ये भी COH में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब CN से COH में कन्वर्ट करेंगे तो एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, ये रिएजेंट ये कंडीशन होगा, राइट। तो उसने फिर दोबारा से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, तो हम लिखेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। एक ही कॉन्सेप्ट को दो मरतबा पूछा एग्जामिनर ने, इट डजंट मेक एनी सेंस, बट इट्स फाइन, नो इशू, सिंस वी आर गेटिंग मार्क्स इट इज इजी, तो कोई इशू नहीं है। That's the end of question number 4, I believe. Let's move on to the next question. Question number 5. Compound. Hold on a second. Compound X contains same functional groups as citric acid. Citric acid is basically carboxylic acid found in citrus fruit. Okay, इसका फंक्शनल ग्रुप यकीनन होगा COH। सेम फंक्शनल ग्रुप इस सिट्रिक एसिड में भी होगा, ये रहा। तो एक फंक्शनल ग्रुप OH का ये रहा, COH का दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये रहा, और COH का तीसरा फंक्शनल ग्रुप ये रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन फंक्शनल ग्रुप हैं COH के, और ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इट इज टर्शियरी अल्कोहल। सो मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। बाकी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑब्वियस नजर आ रहा है। The table describes some of the similarities and differences between citric acid and compound X. Compound X. Okay. Citric acid में कोई कारल नहीं है, X में कारल है। Citric acid में सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है क्योंकि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें भी हो रहा है, इसका मतलब इधर भी क्या अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कारल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा, है ना। फिजिंग है तो इसका मतलब या तो OH ग्रुप होगा या COH, या हो सकता है दोनों ही हो। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं आपसे रिएक्शन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि मैंने कहा 3 डिग्री अल्कोहल होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब जो अल्कोहल है या तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा या फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगा। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ओके। Complete the equation to show the reaction of excess sodium with citric acid. Show the skeletal structure of the product. Okay. अब हम करते क्या हैं, काफी टेक्निकल है, वैसे आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए तो बहुत आसानी है कि मैं इसको कॉपी करूंगा, स्क्रीनशॉट लेके और चेंजेस कर दूंगा, बट आपको ये पूरा एग्जाम में बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे भी थोड़ी सा बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी, बट अब जरा देखिएगा, ये सोडियम, ओहो देखिए, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, इसको भी डिस्प्लेस करेगा, इसको भी डिस्प्लेस करेगा, इसको भी डिस्प्लेस करेगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, और ये दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब मुझे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल जाएंगे यहाँ से, पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात, इन तमाम हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगेगा, सोडियम, तो 4 सोडियम लगेंगे, इसलिए यहाँ पर 4 लिखूंगा मैं, हो जाएगा सॉल्व। अब मसला तो नहीं है ना। तो जरा देखिए, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से H हटा दीजिए क्योंकि इसकी जगह पे सोडियम आना है, यहाँ से भी H हटा दीजिए, remove H from here, remove H from here, so इधर भी सोडियम लिखिए, इधर भी सोडियम लिखिए, इधर भी सोडियम लिखिए, और इधर भी सोडियम लिखिए, तो मेरे पास कितने सोडियम हो गए, 4, और जाहिर सी बात है यहाँ से कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2H2, ओके।
Next is use the information in the table to deduce the skeletal formula of XC3H6O3. Draw the skeletal formula of X in the box labeled the chiral carbon of the compound with an steric. अच्छा जी, मैं पहले तो ट्रायल एंड एरर की वर्किंग कर लेता हूँ. वो मुझसे कह रहे हैं 3 कार्बन एटम है. 1 2 3. ठीक है. और पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं 2 अल्कोहल कर लेता हूं. तो एक मैंने प्राइमरी अल्कोहल कर लिया और दूसरा भी प्राइमरी अल्कोहल कर लिया. ये 2 अल्कोहल्स हैं. लेट्स सी कि ये ठीक है स्ट्रक्चर या नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहां पर 6 हाइड्रोजन है. इसका मतलब ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया. ठीक है, यानी 2 प्राइमरी अल्कोहल नहीं हो सकते इसमें. अच्छा भाई, ऐसा करते हैं कि 3 कार्बन एटम्स लिखते हैं. मान लीजिए कि एक प्राइमरी अल्कोहल कर लेते हैं एंड लेट्स सपोज कि एक सेकेंडरी अल्कोहल कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हाइड्रोजन हैं यहाँ पर 6 हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत. सो ये दोनों क्यों गलत हो गए? इन दोनों में मोर हाइड्रोजन एटम्स हैं. ओके, इसमें भी मोर हाइड्रोजन एटम्स हैं. इसका मतलब 2 प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है. इसका मतलब 2 अल्कोहल तो हो ही नहीं सकते. ये कंफर्म हो गया मुझे. अब हम आगे चलते हैं. हम कहते हैं जनाब 3 कार्बन एटम है. मान लीजिए कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है. सही है. वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं. कार्बन काउंट करो. 1 2 3 कार्बन सेटिस्फाई हो गए. 1 2 3 ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गए. 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए. यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इस कंपाउंड में कोई कायरल नहीं है. उसने कहा था ना हमसे कि कायरल कार्बन है. ओके, बात समझ में आ रही है? यहाँ लिखा था ना उसने कि कायरल है. ये उसने शो किया था मुझे कि कायरल है. इसका मतलब ये भी गलत हो गया. तो अब मैं क्या करूंगा? मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा. 1 2 3. मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड करूंगा, इसको OH लिखूंगा, सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करूंगा. अब आप नोट करें, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं. और आप नोट करें, इसमें ये वाली कार्बन कायरल भी है. तो इसका मतलब ये करेक्ट स्ट्रक्चर है आपका कंपाउंड एक्स का. तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर. स्केलेटल फॉर्मूला क्या रहा है? ओ माय गुडनेस गाइस, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. स्केलेटल फॉर्मूला, तो मैं इसका स्केलेटल फॉर्मूला बना देता हूं आपको. तो मैं इस तरह से बनाऊंगा, मुश्किल तो नहीं है. जैसे CH3CHOH COOH. ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट. वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 बट सिट्रिक एसिड डज नॉट. तो भाई सिट्रिक एसिड में टर्शियरी अल्कोहल है व्हिच कैन नॉट ऑक्सीडाइज, जबकि इस एक्स में सेकेंडरी अल्कोहल है व्हिच कैन ऑक्सीडाइज. ठीक है, संज्ञा लिखेंगे. Citric acid contain tertiary alcohol which cannot oxidize, while compound X contains secondary alcohol so it can oxidize easily. Okay,
Part C, compound X is one of the pair of stereoisomers. Stereoisomerism occurs when a molecule has at least one of the two key features. The two key features give rise to stereoisomerism. सबसे पहली तो बात यह है कि स्टेरियोआइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टेरियोआइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो फीचर है वो ये है कि उसमें कायरल कार्बन होती है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। Chiral carbon in which in which 4 different groups are attached. ठीक है, जबकि ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड दो सिमिलर या दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है, अराउंड double bonded carbon either two similar or 4 different groups। कंडीशन याद है, जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो तो क्या होता है, ठीक है ना, either two similar or 4 different groups are attached to it। ठीक है, a structural isomer of compound X does not fizz when added to sodium। Explain what is mean by structural isomer। Compounds which have the same molecular formula but different structural formula Okay, that's the end of question number 5, and that's the end of paper as well. Thank you very much.